Good morning, my dear students. We are again back in your own platform of Biology Nagari with a very new interesting chapter, the human reproduction. Basically, beta, this human reproduction belongs to the zoology of class 12th. Basically, this is related to human physiology, but not comes under the class 11th human physiology. Basically, in this human reproduction, we are going to study the male reproductive system, the female reproductive system, as well as the menstrual cycle going inside the female's body. Now, let's start this chapter with our first part of male reproductive system. But before starting from the initial point, I want to discuss some basic information. Then I want to get enter into the male reproductive system. So let's see beta. Basically, the content of our video is male reproductive system part 1. Male reproductive system part 1. So let's start beta. Basically, when we talk about reproduction, what comes in the mind when we talk about reproduction beta? Re means again. Re means again, and production means a formation of a generation. Formation of a generation. But when we are talking specifically about human being exhibits the sexual reproduction. Human being exhibits the sexual reproduction. Sexual reproduction, because we know that reproduction is of two types, the asexual and the sexual. In the sexual reproduction beta, basically the both parents are necessary for the formation of next generation. But in the case of asexual, which we are not going to discuss in this specific chapter, but I am giving you some outlines, no, both of parents are required, single is capable for the formation of next generation. Now see beta, basically when we start about the human reproduction, human being are sexual dimorphic organism. Human being are sexual dimorphic organism. This line is not given by me. This line is being given by the NCERT. NCERT is telling that human being shows the sexual dimorphism. Now, what is the meaning of the sexual dimorphism? Di means two. We use the word di for two, and morphic for morphology. Morphic for morphology. So it means human being has two different morphologies. One is male and other is the female. Other is the female. So let's start our first and the main content of this chapter, which is the male reproductive part. So let's start. नोट भी करते चलिएगा बेटा. Okay, let's start. Now see, when we talk about the reproduction, the basically human being shows human being shows shows such events. Those are first the formation of gamete. The first step, the formation of gamete. So we know that there will be formation of gamete in both male and female. When there will be the formation of gamete in male, in the case of male, that will be the formation of sperm, because sperm is the male gamete. And when in with the case of female, the gamete of female is ova, which is also known as ovum, or also known as oocyte. These three are the name of the female gamete. Now, this was the first beta, this was the first event. Now, when we talk about the second event beta, the second event is transfer of male gamete, which is the sperm, yes, into the female genital tract.
into the female genital tract. We will talk about further that what is this genital tract, but now write it down. Second, which is also known as, this transfer of male gamete into the female gamete is called insemination. This is also given in your NCERT beta. At the last of the video, I will show the interface of NCERT where these terms are being given. I am not telling it by my own. Now, the third step beta, or we can say the third event is the fusion of both of these gametes. Fusion of these gametes, which is called fertilization. The fertilization. Yes, the fusion of male as well as female gamete into the female body is called or termed as fertilization. This was the third event. After the fertilization, this fertilization will lead to the formation of zygote. This will lead to the formation of zygote, and further, after a period of time, after this zygote develops into the stage of blastocyst, these blastocysts will be get attached to the walls of endometrium, which is called implantation. So the next event will be, fourth event will be implantation. Yes, implantation is the attachment of the blastocyst condition on the walls of endometrium, and we know that in the previous lecture of embryology we have already discussed that the attachment of the blastocyst on the walls of endometrium is the first and very confidential proof for the pregnancy. Okay, now see, this was the fourth event beta. Now the next event will the development of embryo till the parturition. It means this is the gestation, the period of gestation in which embryo gets developed and finally the female gets their baby parturated from the body. This is called the fifth event, which is the gestation beta. This is the gestation. This is the fifth event. So these are the event, and finally this event leads to the parturition. Parturition means the delivery of a baby in this dunya. Okay, now see, note it down. Let's further. Now see beta, this was the mechanism inside the human body, that what are the events going to be proceeded in the reproduction. So in this chapter beta, we have major three topics to study. The first topic is the male reproductive system. The male reproductive system. Second one beta, second one is the female reproductive system. Female reproductive system. And third one beta, which is the menstrual cycle. This is also one of the most important topic of this chapter and being asked frequently in the NEET. Menstrual cycle. Main these three topics are to be covered in this chapter. So let's start from our first topic, which is the male reproductive system, and in this video we will talk only till the male reproductive system, or we can say the half of the portion of male reproductive system, because only the structure and their function will be illustrated in this lecture, but the formation of sperm is also a part of male reproductive system. We will not study in this lecture, so I have divided into part 1 and part 2 of male reproductive system. In part 2 we will study the spermatogenesis, which is the formation of sperm inside the seminiferous tubule. So let's start the part 1 of male reproductive system beta. Let's see basically beta, this is the structure of male reproductive system. You can see beta, the male reproductive system is basically divided into two parts: primary sex organ and second one, the secondary sex organ. The secondary
sex organ. Now see beta, primary sex organ of male is the testis. Yes, testis is considered as the primary sex organ of male because the testis is the place where the formation of gamete, or we can say that the formation of sperm, is going to be happen. And we know that primary sex organ are such organ where the gamete formation takes place. And when we talk about the secondary sex organ beta, there are many sex organs. Some of there are ducts, some of there are glands, like vas deferens, एपिडिडाइमिस। कलर क्यों चेंज हो रहा है सर इसका अपने आप? यहाँ जैसे मैंने ब्लू येलो ले लिया और पीछे दूसरे वाले पर क्या है? हाँ, तो इस पे मैंने पीला ले लिया तो अपने आप वाइट क्यों हो जा रहा है ये? एपिडिडाइमिस। हाँ ठीक है। अभी सेकेंड वन इज द एपिडिडाइमिस बेटा। थर्ड the ejaculatory duct, which is basically the duct of seminiferous seminal vesicle, which is a gland. And there are also 3 glands in the male reproductive system beta. Now see these 3 glands. These 3 glands are the seminal vesicle beta, the seminal vesicle, second the prostate gland, which is an unpaired gland. याद रखना बेटा, seminal vesicle paired gland है, prostate unpaired gland है. Third is the Cowper's gland, which is also known as bulbourethral gland, because these are the shape of bulb की तरह दिखता है तो उसको bulbourethral gland, इसको Cowper's gland भी कहते हैं. अब इनको मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ on the interface diagram. देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो है देखना बेटा, ये वाला पोर्शन मैं तुमको दिखाता हूँ. हाँ देखना बेटा, ये जो है ये पोर्शन, ये टेस्टिस है, और जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में है ये स्क्रोटम है. ये देखो बेटा, ये स्क्रोटम है, द बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर वो टेस्टिस है, एग लाइक स्ट्रक्चर, ये टेस्टिस है, जिसका यहाँ पे टेस्टिकल लिखा हुआ है. देखो बेटा, दिस इज टेस्टिकल, दिस इज द स्क्रोटम. अब दिस इज द पेनिस बेटा, ये पेनिस है, विच इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, और ये इंसेमिनेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है. ठीक है. नाउ सी, एपिडिडाइमिस के ऊपर बेटा, अभी मैं इरेज करके एपिडिडाइमिस दिखाता हूँ. टेस्टिस और स्क्रोटम समझ में आ गया होगा डायग्राम पे. अब देखिए बेटा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको मैं एपिडिडाइमिस वगैरह इसी पर दिखा दूँ. ठीक है, देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा. देखो, ये टेस्टिस के ऊपर ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ. देखिए बेटा, टेस्टिस के ऊपर ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे कॉइल्ड है, ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, एपिडिडाइमिस. इसी एपिडिडाइमिस से क्या निकल गया फिर से? ये एपिडिडाइमिस से क्या निकला हुआ है? यस, दिस इज द वास्ट डिफरेंस. दिया है कि नहीं? हाँ देखो दिया हुआ है, ये दिया हुआ वास्ट डिफरेंस. ठीक है, तो एपिडिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस निकला. ये वास्ट डिफरेंस आगे कंटिन्यू हुआ. देखो, गैल ब्लैडर के जस्ट पीछे से ये क्या है? ये गाल ब्लैडर है बेटा, ब्लैडर दिया हुआ है, बेसिकली इट इज गाल ब्लैडर. अब देखो, गाल ब्लैडर के पीछे पीछे वास्ट डिफरेंस आया, फिर आगे की तरफ यूरेटर होते हुए आ करके यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेसिकली आई एम शोइंग यू बेटा, यहाँ ध्यान देना, मेन समझने की चीजें यही है. देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर, ये जगह पर, मतलब जहां पर वास्ट डिफरेंस ने एंटर किया गाल ब्लैडर पे, इस टोटल जगह पर 3 ग्लैंड्स होती हैं जो मैंने आपको बताया. सबसे ऊपर
सेमाइनल वेसिकल सबसे ऊपर, सबसे ऊपर सेमाइनल वेसिकल बेटा, उसके नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड, सबसे नीचे काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड बेटा, ये जो तीन ग्लैंड है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, द सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स, जिसको बल्बोइरेथ्रल भी कहते हैं, इसमें से सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड है, दो होते हैं। प्रोस्टेट सिंगल होता है, पेयर नहीं होते। काउपर्स भी पेयर्ड है, मतलब दो ग्लैंड्स पेयर्ड हैं और एक प्रोस्टेट अनपेयर्ड है। ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल दिया हुआ है पहले से बेटा, जो मैंने बनाया। स्ट्रक्चर पे तुम्हें ना दिख पाए तो मैं इसको एक नेक्स्ट स्लाइड पर खुद से बनाने की कोशिश करके तुमको दिखाऊंगा, ठीक है, रफ डायग्राम। और ये यूरेटर, यूरेटर के बारे में तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा पहले से ही पढ़ा हुआ है। यस, क्या पढ़ा हुआ है? हाँ, यूरेटर क्या लेकर के आता है? यूरिन फ्रॉम द किडनी इनटू द गाल ब्लैडर। इस गाल ब्लैडर में यूरेटर क्या लाएगा? यूरिन लाएगा। कहाँ से? यस, किडनी से। कहाँ से? किडनी से। याद आ रहा है कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऐसा डायग्राम? हाँ, तो यही है यूरेटर। ठीक है, अब देखो, आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मेल गैमेट होना है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे वास डिफरेंस हुआ, एपिडिडाइमिस हुआ, इजैकुलेटरी डक्ट हुआ। ग्लैंड्स में तीन ग्लैंड्स है, द सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे बेटा। अब देखो, उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को मैं इजीली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक रफ डायग्राम से। देखना बेटा, दिस वाज द ग्लैंस पेनिस बेसिकली। ये जो उभरा हुआ पोर्शन है ना पेनिस के टिप पर, इसको बोलते हैं ग्लैंस। पहले हम लोग बना लेते हैं, उसको लेबलिंग करेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये पेनिस बना हमारा, दोनों तरफ मैं क्या बना लेता हूँ? टेस्टिस के लिए स्क्रोटम बना लेता हूँ। झोले को बनाऊंगा तभी तो उसके अंदर टेस्टिस में डालेंगे, तो टेस्टिस थोड़ा डिफरेंट कलर का डाल देते हैं इस पे। चलो, इसमें मैंने टेस्टिस बना दिया, दो टेस्टिस हो गए हमारे पास। अब देखो, इसी टेस्टिस के ऊपर बेटा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस। ये कलर आपको विजिबल है बेटा? दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। ये एपिडिडाइमिस है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जस्ट टेस्टिस के ऊपर। और इसी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर से क्या निकला हुआ है बेटा? देखना, ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्या निकला हमारा? वास डिफरेंस निकला। क्या निकला? वास डिफरेंस निकला। तो इधर से भी निकालना पड़ेगा ना, निकाल दिए यहाँ से भी हम। अब देखो, यहाँ पर हमारा क्या है पहले से? यहाँ पर हमारा गाल ब्लैडर है बेटा। क्या है? गाल ब्लैडर, जिसमें आकर के क्या खुला हुआ है? यस, यूरेटर खुला है, यूरिन ला रहा है। अब ध्यान देना, ये वास डिफरेंस बेटा क्या हो रहा है? ये वास डिफरेंस इसके पीछे से आएगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है, इसके पीछे से आएगा, ये भी आएगा, इसके पीछे से आ गया, और आ करके एक ही जगह पर ये दोनों मिल गए, ठीक है। और ये जिस जगह पर मिले, थोड़ा सा और सुंदर बनाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो, ये दोनों जहां पर आ करके मिले एक ही जंक्शन पे, यहां से अब वास डिफरेंस का नाम बदल गया, वास डिफरेंस नहीं बोलेंगे अब ये आ गया। यहाँ पर रास्ते में क्या है? यहाँ पर अब रास्ते में आपको मिलने वाला है, हाँ, सेमाइनल वेसिकल, जिस पहली ग्लैंड की मैं बात कर रहा था। दोनों तरफ से इधर भी होगा, है ना, क्योंकि हमको पता है ये क्या है, पेयर्ड है। तो सेमाइनल वेसिकल में ने अपना सिक्रीशन
जो कि क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल। ये क्या है बेटा, सेमाइनल वेसिकल। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये है सेमाइनल वेसिकल। ये है सेमाइनल वेसिकल। क्या हो रहा है भाई बार बार, ये सेमाइनल वेसिकल। और इसका जो सिक्रेशन होता है वो बेटा होता है सेमाइनल फ्लूइड, सेमाइनल फ्लूइड बेसिकली जो सीमन है, ठीक है, बेसिकली द सीमन, बेसिकली इट इज द सीमन। ये क्या हो रहा है भाई, बेसिकली ये सीमन। अब देखो, सेमिनिफेरस सेमिनल वेसिकल ने क्या दे दिया, उसको सीमन दे दिया। अब आगे की कहानी देखते हैं बेटा। अब ये आगे कंटिन्यू हुआ, आगे तो रास्ते में एक अनपेयर्ड ग्लैंड भी था, याद करिए, जो सिंगल है। ये क्या है हमारा, प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आगे बढ़े तो और क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ये लेकिन क्या है, ये पेयर्ड है, ठीक है, ये क्या है, पेयर्ड है। अब देखिए, ये इसमें आकर के मिल जाएगा वापस से, देखो। हम्म ये आकर के इसमें वापस से मिल गया। बेटा लग रहा है टेक्निकल कुछ एरर आ रही है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम इसको देखेंगे। ये था बल्बो यूरेथ्रल और ये एक सिंगल प्रोस्टेट। तो सेमिनिफेरस ये सेमिनल वेसिकल ने सीमन दिया। स्पर्म तो आ ही रहा है टेस्टिस के अंदर से, मैं अभी दिखाऊंगा तुमको स्पर्म के अंदर क्या, टेस्टिस के अंदर क्या चीजें हैं, कैसी हैं। तो टेस्टिस ने अपने अंदर क्या बनाया हुआ है बेटा, स्पर्म बनाया हुआ है। हमको पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो स्पर्म बनाएगा। अब ये स्पर्म एंटर कर गया। अब स्पर्म वास्ट डिफरेंस होते हुए पहुंच रहा है भाई, पहुंच गया यहाँ पर। अब ये जो डक्ट है ना सेमिनल वेसिकल के, दिस डक्ट, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ कि तुमको साफ दिखे। ये वाइट कर दिया मैंने। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डक्ट है ना, इस डक्ट को बोलते हैं ईजैकुलेटरी डक्ट, ईजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू सीमेन गया। तो अब यहाँ पे स्पर्म तो पहले से आया हुआ था, प्लस सीमन मिल गया, स्पर्म और सीमन दोनों मिल गए। अब आगे बढ़ रहे हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रोस्टाग्लैंडिन देगा, कैल्शियम, फ्रक्टोज, ये सब देगा। सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। और कॉमन डक्ट जो कि ये यूरोजेनाइटल ट्रक है, इसको बेटा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, इसको यूरोजेनाइटल ट्रैक भी बोलते हैं। क्यों, यूरिन और स्पर्म दोनों इसी से आना है। यूरिन को भी आना होगा तो यही रास्ता है, और स्पर्म को आना है तो भी यही रास्ता है, दो अलग अलग रास्ते नहीं है, ठीक है। और ये जो चौड़ा पोर्शन है पेनिस का, इसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं बेटा, ग्लैंस पेनिस। अब देखो, ये चूंकि यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा का जो लास्ट ओपनिंग है ना, ये इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। आया समझ में। हाँ, ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। मैंने इसलिए अपने से बना दिया ताकि तुम्हें अगर इंटरफेस पे ना समझ में आ रहा हो तो इस पे आपको दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वो सिर्फ टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव प्राइमरी ऑर्गन है, ये क्या है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसका, मेल का। क्या है, टेस्टिस है। अब ध्यान से देखना बेटा, टेस्टिस के बारे में हम डिटेल में कर रहे हैं अब इसको। टेस्टिस के बाहर मैंने पहले ही से ही तुम्हें बता रखा है कि ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते थे, एपिडिडाइमिस बोलते थे। क्या है ये, एपिडिडाइमिस। इट इज एन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, देख चुके थे हम। अब देखो आगे, ध्यान से देखना बेटा। इस टेस्टिस के अंदर ध्यान दो तो बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। ये टेस्टिस का अंदर का ल्यूमेन बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। एंड दीज कंपार्टमेंट्स
और इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं बेटा, ये इनकी संख्या बेसिकली हम बात करें तो हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट्स, बट ईच कंपार्टमेंट कंटेन्स each compartment contains each compartment contains 2 to 3 seminiferous tubules। हाँ, इसके अंदर भी ट्यूब्यूल्स हैं बेटा, जिसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 2 से 3। और टोटल कंपार्टमेंट्स में कितने बचे हैं? ईच टेस्टिस, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच टेस्टिस, नॉट इन द कंबाइंड मैनर, आई एम नॉट टॉकिंग इन द कंबाइंड मैनर, आई एम टॉकिंग इंडिविजुअली। और इस 2 से 3 ट्यूब्यूल्स हर कंपार्टमेंट में, इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और यही वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बेटा, यही मैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूँ। मैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूँ बेटा, ये जो है ना ऐसे ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ये ही वो जगह है जहाँ पर क्या बनना है? यस, इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बनना है? स्पर्म बनना है। मतलब बोलचाल के भाषा में हम भले बोल देते हैं कि टेस्टिस के अंदर बन रहा है स्पर्म, लेकिन बेसिकली इट इज बीइंग फॉर्म्ड इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब बना लेगा अपने अंदर स्पर्म, इट मींस देयर स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, तो ये स्पर्म को इस, ये जो बंडल दिख रहा है ना, बंच, यहाँ पर बहुत सारे गुच्छे टाइप के नर्व्स हैं, इसमें दे देता है, दिस इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस, ठीक है। इस बंडल को क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। तो रेटेटेस्टिस में स्पर्म आ चुका। अब ये रेटेटेस्टिस बेटा स्पर्म को ऐसे ऐसे देखो निकला हुआ है, इसको वासा इफरेंसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया, वासा एफरेंसिया के थ्रू एपिडिडाइमिस में टेम्पररी स्टोर के लिए दे देता है। एपिडिडाइमिस में कैसा स्टोर होता है बेटा? टेम्पररी स्टोर, कुछ समय के लिए। अब ये कुछ समय को बेटा कुछ घंटे मत समझ लेना, इट कैन बी 2 to मैक्सिमम 30 days ऑल्सो, 2 से 30 दिन भी मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो, और चूंकि ये लास्ट पोर्शन था एपिडिडाइमिस का, तो इसको टेल ऑफ एपिडिडाइमिस कह दिया इस पोर्शन को, ठीक है। तो और देखो ध्यान से देखना बेटा, ये जो टेस्टिस है इसके बाहर में एक लेयर है जो कि लग रहा है कवर किया हुआ है। यस, दिस इज द कवरिंग। ये जो है ये कवरिंग है बेटा टेस्टिस का, और ये ट्राई लेयर्ड कवरिंग होता है। कितने लेयर का? 3 लेयर। और इस कवरिंग को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। और चूंकि 3 लेयर है तो तीनों का मैं नाम तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरे को जगह खाली करना पड़ेगा ना दिखाने के लिए, तो मैं कुछ इरेज कर लेता हूँ। और मैं इस जगह को इरेज कर दूँ? हाँ, कर देता हूँ। हाँ। हम्म, इस जगह को हम खाली कर देते हैं ताकि मैं आपको ये ट्यूनिका द कवरिंग ऑफ टेस्टिस जो ट्राई लेयर्ड है, तो तीनों लेयर के नाम भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इतना तो काफ़ी है हमारे लिए, इतने जगह में तो मैं आपको ट्यूनिका बता ही दूंगा। हाँ देखिए बेटा, ये जो बाहर कवरिंग दिख रहा है ना आपको, ये जो ऐसे बाहर कवरिंग आपको दिख रहा टेस्टिस के बाहर, ये बेसिकली ट्राई लेयर्ड कवरिंग होती है। क्या होती है? ट्राई लेयर्ड, 3 लेयर में है। हाँ बेटा, क्या हो रहा है भाई? ट्राई लेयर्ड कवरिंग है, और ये कवरिंग को ट्यूनिका बोलते हैं बेटा कंबाइंडली। इट इज़ द कवरिंग ऑफ टेस्टिस। ये ट्यूनिका ट्राई लेयर्ड है। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं हम लोग बेटा क्या? यस, ट्यूनिका। अगर आपको न भी याद हो कि मिडल कौन सा है, आउटर कौन सा है, इनर,
तो ज़रूरी ये है कि तीनों के नाम याद होने चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि मिडल कौन सा ये नहीं है, ठीक है। ना भी बाई चांस याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना भी बाई चांस याद हो तो ये होने चाहिए कि तीनों लेयर के नाम क्या है। तो फर्स्ट लेयर इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सेकेंड second is the tunica vangialis, and third and the last layer is the tunica vasiculosa, vasiculosa, ठीक है। ये तीन लेयर की कवरिंग टेस्टिस के ऊपर है और कंबाइंडली इनको हम ट्यूनिका बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर आई होप सबको क्लियर हो चुका। अब आगे देखते हैं बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं दो केस बताऊंगा, मतलब टेस्टिस के बारे में थोड़ी बातें करेंगे अब हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा बेटा। एक देखते हैं हम लोग बिफोर 7 मंथ का केस, जब बच्चा मदर के बॉडी में है, अभी जन्म नहीं लिया बेचारा। तो बिफोर 7 मंथ का केस क्या होगा टेस्टिस के साथ? बिफोर 7 मंथ, तो 7 मंथ से पहले बच्चे का टेस्टिस जो है, मेल बेबी का जो टेस्टिस है, वो अपने एब्डोमिनल कैनाल में ही रहेगा। दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी बेटा, मतलब पेट वाला हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो 7 मंथ से पहले उसका टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया। ये नीचे क्या था, मैं बच्चे का स्क्रोटम बना दे रहा हूँ, और यहाँ पर एक कैनाल होता है दोनों की बीच की इंटरकनेक्शन, उसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे इंग्विनल कैनाल होता है, और अभी टेस्टिस कहाँ पर है? अभी एब्डोमिनल कैविटी में ही है। दो कलर से बनाया है तो ये मत समझ लेना दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टाइलिश के टेक्निकल इशू की वजह से कलर अपने आप भी चेंज हो जा रहा है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, टेस्टिस अभी एब्डोमिनल कैविटी में है, किस में नहीं आया? स्क्रोटम में अभी नहीं आया। क्यों नहीं आता है बिफोर 7 मंथ? ये क्वेश्चन है। आया नहीं आया ये तो हम जान गए, क्यों नहीं आया? क्योंकि बिफोर 7 मंथ टेस्टोस्टेरोन जो है ये नहीं बनता। टेस्टोस्टेरोन इज नॉट बीइंग रिलीज इनसाइड द बेबीज बॉडी, दैट्स व्हाई बिफोर 7 मंथ टेस्टिस इज नॉट बीइंग डिसेंडेड डाउन इनटू द स्क्रोटम, ठीक है। लेकिन वही 7 मंथ बाद जब टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है तो ये डिसेंड डाउन हो जाते हैं, किसमें? स्क्रोटम में, और जिसके थ्रू होते हैं इसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। ये इंग्विनल कैनाल है, इसी इंग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम, अंदर आएंगे। बाई चांस किसी, भगवान न करे ऐसा कोई दिक्कत हुआ कि 7 मंथ के बाद भी बेबी के डिसेंड डाउन नहीं हो पाया स्क्रोटम, इसमें स्क्रोटम में टेस्टिस आ नहीं पाया, फेल हो गया, आने से नहीं हो पाया, उस केस को क्या बोलते हैं? उस केस को बोलते हैं बेटा क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। What is cryptorchidism? It is the case in which, in spite of crossing the 7 month inside the mother's body, testis has been failed to descend down into the scrotum. This condition is called cryptorchidism. और घबराने की बात नहीं है, इसका सर्जिकल मेथड के थ्रू इसको डिसेंड फिर करवाया जा सकता है स्क्रोटम में, एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्कियोपेक्सी। ऑर्कियोपेक्सी बेटा एक सर्जरिकल मेथड है जिसके थ्रू डॉक्टर इंग्विनल कैनाल के थ्रू इसको वापस ला देंगे और बच्चा इनफर्टाइल होने से बच जाएगा। इतना है समझ में? अब देखिए बेटा, ये केस मुझे बताना था क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नीट का। अब आगे देखिए, अब मैं एनसीईआरटी में दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली मेल रिपोर्टरी सिस्टम में। तो एनसीईआरटी अपने पहले पैरा में ही देखिए कह रहा है कि एज यू नो दैट अवेयर ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ध्यान देना बेटा, मैंने पहले ही स्लाइड में आपको दिखा दिया है क्या कि ह्यूमन बींग सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होता है, जो कि एनसीईआरटी की इस लाइन में लिखी हुई है, ठीक है। ह्यूमन बींग क्या होता है? सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होता है, हमने देख लिया। और ह्यूमन बीइंग की जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, इसमें कई स्टेप्स हैं, ध्यान से देखिए। पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जो मैंने आपको दिखाया था पहले स्लाइड में। उसके बाद क्या होने वाला है? स्पर्म मेल से फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाने वाला है, और इसी को हमने क्या बोला था? इंसेमिनेशन। याद करिए, इंसेमिनेशन, जो कि सेकंड मैंने बताया था। उसके बाद देखिए बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल, इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या होगा?
फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जो मैंने बता दिया था इसके बाद कि स्पर्म और ओवा जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट हो गया। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन डेवलपमेंट। अब ये जाइगोट जब पूरी तरीके से किस कंडीशन में जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, तो ये ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम के जो दीवार होंगे, ये जो इंडोमेट्रियम के दीवार होंगे इस पर जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ये हमने देख चुका है। अब देखो, अब देखना बेटा, इम्प्लांटेशन तक हो गया। अब ये डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट मतलब ब्लास्टोसिस्ट जब एक बार इस दीवार पर इम्प्लांट हो गया, ब्लास्टोसिस्ट जब एक बार इस दीवार पर इम्प्लांट हो गया तो अब ये धीरे धीरे डेवलप करते करते एक बेबी बनाएगा, और बेबी फाइनली मदर की बॉडी से पार्चुरेट हो जाएगी बाहर की तरफ, जिसको हम लोग डिलीवरी बोलते हैं। अब ये सारे, जिसको जेस्टेशन कहा, मैंने आपको बताया था जेस्टेशन। उसके बाद हमें पता है कि ये सारे इवेंट्स कब स्टार्ट होते हैं, जब प्यूबर्टी होता है। प्यूबर्टी मतलब ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल अचीवमेंट, जब एक मेल या फीमेल इज गोइंग टू स्टार्ट मैच्योरिंग फॉर द रिप्रोडक्टिव फेज, ये प्यूबर्टी, ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। मैं यहाँ पे आपको डिफिनेशन दे देता हूँ अगर आपको प्यूबर्टी का चाहिए। तो प्यूबर्टी क्या है, ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। आगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल, हाँ थोड़ा सा अंतर है, लास्ट की लाइन में क्या बताना चाह रही है एनसीटी कि मेल्स में स्पर्म थ्रू आउट द लाइफ बनता है, लेकिन फीमेल्स में ओवा थ्रू आउट द लाइफ नहीं, टिल मेनोपोज ही बनता है। यहाँ तक मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइंस एक्सप्लेन कर दी। अब देखिए इसके आगे बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हेडिंग है, इसमें एनसीईआरटी क्या बोलना चाहती है। देखो मैंने ये डायग्राम तुमको अलग से बनाया था, दिखाया खुद से भी बना के, इंटरफेस पे भी सारी चीजें, एनसीईआरटी की डायग्राम क्लियर है। एनसीईआरटी देखो बेटा यहाँ क्या बोल रही है, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। हाँ, ये लाइन से एक क्वेश्चन निकल के आया कि ये जो टेस्टिस है ना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मान लो ये जो टेस्टिस है ये बॉडी से बाहर क्यों है, एब्डोमिनल कैविटी से क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस टेम्परेचर पर कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता, स्पर्म बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसको हमेशा बनने के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, किससे, बॉडी टेम्परेचर से, मतलब लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा तभी स्पर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसके वजह से मजबूरी में बॉडी से बाहर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी स्क्रोटम में इसको रखा गया, दिस वाज द रीजन। अब देखो बेटा आगे, स्क्रोटम में रखा गया, द स्क्रोटम हेल्प्स द टेस्टिस टू, हाँ मतलब टेम्परेचर वाला कहानी हमने देख लिया। एक एक लाइन देखिएगा, मैंने कवर कर चुका है और दिखा रहा हूँ बस आपको। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये टेम्परेचर जो है ये वाली, ये जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस ओवल ओवल शेप का होता है विथ लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, मतलब ये जो टेस्टिस का ये लेंथ है 2 से 3 सेंटीमीटर और ये 4 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ कवरिंग, कवरिंग है ऊपर ट्यूनिका की। ठीक है, और हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और उसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं उस कंपार्टमेंट को, जो मैंने अभी दिखाया था। और उस कंपार्टमेंट के अंदर, हर कंपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जिसके अंदर स्पर्म बनना है। उसके बाद ईच लॉब्यूल कंटेन्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, देख लिया हमने, इन विच स्पर्म आर बीइंग लाइंड बाय द, हाँ अब एक और चीज बेटा मैं तुमको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, फिर हम आएंगे पीछे वाले पे। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, किसके अंदर, हाँ टेस्टिस के अंदर, मैं टेस्टिस के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये टेस्टिस था, कंपार्टमेंट्स में बटे हुए थे, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कई हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर भी बेटा 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक जर्म सेल, एक जर्म सेल बेसिकली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस स्पर्म, मेल स्पर्म, और दूसरा ये सर्टोरी सेल होता है बेटा, सर्टोली सेल। और ये सर्टोली सेल कुछ नहीं करते, इन्हीं जर्म सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, और ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं अभी आपको आंसर में दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखिए, देखो वही लिखा हुआ है कि 2 टाइप्स ऑफ सेल इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक मेल जर्म सेल, एक मेल जर्म सेल और एक सर्टोली सेल।
एक सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल इसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा ताकि स्पर्म बने। द मेल सेल्स अंडरगोज म्योटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म। अब मेल स्पर्म बन जाएगा म्योटिक डिवीजन होते होते, वाइल द रीजन आउटसाइड द, और याद रखिएगा इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो खाली जगह है वहां पर भी कुछ सेल्स, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो ये दो तरह के सेल्स हमने देख लिए, लेकिन इसके बाहर खाली जगह पर जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम लोग लेडिक सेल्स भी बोलते हैं, लेडिक सेल्स। और ये लेडिक सेल क्या करते हैं, मेल एंड्रोजन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, मेल एंड्रोजन, मतलब मेल को मेल बनाया मेल एंड्रोजन ने, जो कि लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स ने रिलीज किया। अंदर दो सेल्स, बाहर की जगह पर एक सेल लेडिक सेल जो कि मेल एंड्रोजन रिलीज करता है। इतना आया क्या समझ में? अब देखिए आते हैं पीछे। लेडिक सेल्स, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, रेटेटेस्टिस, ये सारी चीजें मैंने आपको टर्म डायग्राम पे समझा दिया। इट मींस मैं ये दिखाना चाह रहा था, और लास्ट में देखो यूरेथ्रल मीटस, मैंने ये दिखाया। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। इसी तरह बने रहिए, पूरी चैप्टर की एक एक लाइन को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट मेरा लेक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हुए आएगा, ठीक है। सो बी कंटिन्यू इन माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक और चीज़ बेटा, कि जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये हमने लगभग कवर कर चुका है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने लगभग कवर कर लिया, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी स्पर्मेटोजेनेसिस अलग पार्ट में पढ़ाती है, तो हम भी लास्ट में एक स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ताकि एनसीईआरटी के साथ साथ हमको चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी ही फॉलो नीट को करना है और हमारा मेन उद्देश्य नीट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, थैंक यू।